اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں ہے اور اس میں بھی حقیقت و مجاز کے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ جب ہمیں حقیقت اور مجاز کو پہچاننا ہو تو اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، میں متکلم ہوں اور آپ سامع، تو سامع کو کبھی شک ہوتا ہے کہ ہمارے استاد اس لفظ کو اپنے حقیقی معنی میں استعمال کر رہے ہیں یا مجازی میں، جبکہ کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو تو اس کی علامتیں ہم پڑھ کر آئے کہ بھائی تبادر ہو رہا ہے تو یہ علامت ہے حقیقت کی، ٹھیک ہے، صحت حمل ہے تو یہ علامت ہے حقیقت کی، بلکہ جب شک ہو حقیقت و مجاز میں تو اس کی علامتیں پڑھ کر آئے۔ آج بھی ہم سامع کے شک کو پڑھیں گے، لیکن سامع کو شک یہ ہو رہا ہے کہ آیا متکلم نے اس حقیقی معنی کا ارادہ کیا ہے یا نہیں۔ حقیقی معنی میں شک نہیں ہے، بلکہ متکلم کے ارادے میں ہمیں شک ہو رہا ہے۔ مثلا میں آپ کو یہ کہتا ہوں بیٹا پانی پلاؤ، آپ کو پانی کی معنی آتی ہے، لیکن اب آپ شک کرتے ہیں کہ آیا پانی کی معنی ہی استاد نے ارادہ کیا ہے یا پانی سے استاد نے جو ہے کیا ہے مثلا دودھ کا ارادہ کیا ہے یا استاد نے کچھ اور ارادہ کیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آج آپ کو لگ بھگ یہ 5 قانون بتائیں گے۔ کتنے قانون بتائیں گے؟ 5۔ پہلا قانون، جب آپ کو شک ہو کہ استاد نے حقیقی معنی کا ارادہ کیا ہے یا مجازی کا، دونوں کا پتہ ہے کہ یہ حقیقی ہے یا مجازی، وہاں پر آپ اصالت الحقیقت جاری کریں گے۔ بیٹا کیا جاری کریں گے؟ اصالت الحقیقت، یعنی اصل یہ ہے کہ استاد نے حقیقی معنی کا ارادہ کیا ہو، لہذا مجاز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے استاد ایک ایسا لفظ بولتے ہیں جو عام ہے، یعنی اس کا دائرہ وسیع ہے، اس کے کئی سارے افراد ہیں۔ اب آپ کو شک ہوتا ہے کہ استاد کا یہ جملہ فلاں فرد کو شامل ہے یا شامل نہیں۔ مثلا میں نے آپ کو یہ کہا کہ بھائی تمام طلاب کو صبح اٹھتے وقت ایک ایک انڈا دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں نے لفظ کا تمام طلاب، یہ لمحہ والوں کو بھی شامل ہے، سیوتی والوں کو بھی شامل ہے، سمدھیا والوں کو بھی شامل ہے، صرف میر والوں کو بھی شامل ہے۔ اب شک کرتے ہیں کہ شاید صرف میر والوں کے لیے استاد نے کوئی قید لگائی ہو اور ان کو انڈا نہیں دینا، تو ہم کہیں گے یہاں پر قانون جاری ہوگا اصالت العموم۔ اصل یہ ہے کہ یہ لفظ اپنے عمومی معنی پر ہے تو استاد نے بھی عمومی کا ارادہ کیا ہوگا۔ بات واضح ہوگی۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ استاد نے کوئی مطلق لفظ بولا۔ مطلق لفظ کی بھی بیٹا معنی کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ مطلق اور عام میں کیا فرق ہے؟ تفصیل تو آپ آگے پڑھیں گے جہاں عام خاص کی بات ہوگی اور مطلق مقید کی، لیکن تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں۔ عام الفاظ دلالت کرتے ہیں وسعت پر، خود لفظ جیسے سب کے سب، یہ سب کے سب دلالت کرتا ہے عموم پر، جبکہ اطلاق میں بیٹا لفظ جو ہے کیا ہے عمومیت پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ کچھ ایسے مقدمات ہوتے ہیں جن کو مقدمات حکمت کہا جاتا ہے۔ وہ مقدمات حکمت آ کے بتاتے ہیں کہ یہ لفظ عموم اور وسعت پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا میں نے آپ کو کہا مجھے پانی پلائیں، اب پانی، اس میں ٹھنڈے کی قید ہے؟ نہیں ہے، یعنی یہ پانی کا لفظ ٹھنڈے پانی کو بھی شامل ہے، نارمل پانی کو بھی شامل ہے، منرل واٹر کو بھی شامل ہے، عام جو ہم زمین سے نکالتے ہیں ہینڈ پائپ کے ذریعے اس کو بھی شامل ہے۔ تو اب کوئی سا بھی پانی لے آئیں گے، مجھے اعتراض کا حق نہیں ہوگا۔
आप कहें शायद उस्ताद ने इरादा किया था मिनरल वाटर का, तो हम कहेंगे असालतुल इतलाक जारी करेंगे, यानी ये उस्ताद का जुमला हर पानी को शामिल है। बात हो गई। उसके बाद फिर जो है क्या है जनाब, चौथा आपका शक ये होता है कि ये जो उस्ताद साहब ने जुमला बोला यहाँ पर शायद कोई लफ्ज़ तकदीर में हो। मैंने आपको कहा कि बेटा आज मुझे मछली खानी है, अब आप सोचते हैं शायद उस्ताद ने मछली के साथ पल्ली का भी कहा हो, पल्ली जो कि सब्ज़ी होती है आपके इलाके में, तो हम कहेंगे असालतो अदमिल हज़फ। असल ये है कि यहाँ किसी चीज़ हज़फ को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा। जब उस्ताद ने मछली कहा तो यानी सिर्फ मछली। अलबत्ता कहीं पर कोई करीना अगर मिल जाए कि यहाँ पर कोई लफ्ज़ तकदीर में है तो फिर हम करीने के पाबंद हैं। मसलन जैसे कुरान मजीद में है फसअलुल करियत, तुम गांव से पूछो। भाई पूछना उससे होता है जो अहले अक्ल हो, जिसको अक्ल है उससे क्या पूछेंगे, तो यहाँ पर अहल को तकदीर में रखेंगे। फसअलु अहलल करियत, तुम गांव वालों से पूछो। बस जब हज़फ पर कोई करीना हो तो हम हज़फ को मानेंगे, लेकिन अगर कोई करीना नहीं है तो हम असल कहेंगे अदम तकदीर, यहाँ पर कोई चीज़ छुपी मुपी नहीं है। और आखिरी कानून जो आज के दर्स का, एक लफ्ज़ की ज़ाहिरी माना एक है। अब आप एहतमाल देते हैं कि शायद उस्ताद ने ज़ाहिरी माना का इरादा न किया हो, बल्कि उस्ताद ने किसी और माना का इरादा किया है। मसलन मैं कहता हूँ बेटा दर्स में तवज्जो हो, ठीक। अब आप कहते हैं शायद उस्ताद कह रहा है कि बेटा आप जो है ना लिखाई में तवज्जो करो। भाई मेरा ये जुमला दर्स में तवज्जो करो यानी जब उस्ताद के सामने पढ़ रहे हो उसमें तवज्जो करो, तो यहाँ पर असालतु ज़ुहूर जारी होगी कि ये जुमला जिस माना में ज़ुहूर रख रहा है वही मुराद है, कोई और मुराद नहीं है। कुरान मजीद की आयत है असारिको व सारिकतो फ़क़तऊ ऐदियहुमा, चोर मर्द और चोर औरत के हाथ काटो। अब ऐदी का ज़ुहूर इस हमारे चीज़ में, हाथ में। अब आप कहें शायद इससे मुराद ये कि उसकी जो टांगें काट दो, क्योंकि टांगों के ज़रिए वो चल कर जाता है, चोरी करता है। तो हम कहेंगे नहीं भाई, यद का ज़ुहूर इस उज़्व में है, हाथ में है, बस यहाँ पर हाथ ही काटना होगा, कोई और काटना नहीं होगा। बात वाज़ेह होगी। कहते ये जो आज हमने आपको 5 उसूल बताए, असालतुल हकीकत, असालतुल उमूम, असालतुल इतलाक, असालत अदम तकदीर, इन चारों चीज़ों का जो है क्या है रुजू होता है असालतुल ज़ुहूर की तरफ। भाई असालतुल हकीकत का भी मतलब क्या, यानी ये लफ्ज़ हकीकी माना में ज़ुहूर रखता है, ठीक है। असालतुल उमूम का मतलब ये कि ये लफ्ज़ उमूम में ज़ुहूर रखता है। कहते हैं हकीकत में इन तमाम उसूल की एक ही असल माँ है जो कि असालतुल ज़ुहूर है। बात वाज़ेह हो गई। इन असालत की जमा बनेंगे तो हो जाएगी उसूल। इनको कहा जाता है उसूल लफ्ज़िया। क्या कहा जाता है? उसूल लफ्ज़िया। उसूल लफ्ज़िया कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? जहाँ पर हमें मुराद मुतकल्लिम में शक हो कि मुतकल्लिम ने इस चीज़ का इरादा किया है या इस चीज़ का इरादा नहीं किया। समझ में आ गया? बस बिल्कुल आसान है, कोई इसमें पेचीदगी नहीं है, सिर्फ मुताले और मुबाहिसे की दिक्कत के साथ ज़रूरत है। तो अभी हम चलते हैं जनाब किताब की तरफ। अल-अम्र साबिअ, 7वां अमर। इन्होंने कहा था कि मुकद्दमे में 12 अमर है, उन 12 में से 6 आप पढ़ चुके। इंशाल्लाह आज हम 7वां भी पढ़ लेंगे। खूब, अल-उसूल लफ़ज़िय्या, तो वो उसूल जो लफ्ज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। उसूल लफ्ज़िया किसके मुकाबले में? उसूल अमलिया के मुकाबले में है, जो आप अल-मुजज़ दुवम में पढ़ेंगे। इन्न शक्क फ़िल कलाम बेतहक़ीक़, जब हमें किसी कलाम में, किसी बोलने में शक होता है, युतसव्वरो अला नहवैन, उस शक के तसव्वुर कर सकते हैं आप कि उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। अशक्को फ़िल मानल मौज़ू लह, पहला शक ये है कि ये लफ्ज़ किस माना के लिए वज़ा किया गया है।
यानी हकीकी माना में शक के शक के, जैसे हम शक करते हैं फ़ी अन्न सईद बेतहकीक के ये जो लफ्ज़ सईद है बेटा, ये कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुआ है। फ़तयम्ममू, तुम तयम्मुम करो सईद पर। तो आया सईद सिर्फ मट्टी को शामिल है? हल वुज़अ तुराब, आया ये लफ्ज़ सईद वज़ा किया गया तुराब के लिए? औले मुतलक वजहिल अर्ज़, या ज़मीन के तमाम अक़साम के लिए? बेटा वजह यानी चेहरा, मसलन रेती, इसको मट्टी नहीं कहेंगे, पत्थर को भी हम मट्टी नहीं कहेंगे, या वो ज़मीन जिसमें हम अपनी ज़बान में बोलते हैं कलर वाली ज़मीन, ठीक है, उर्दू में मेरे ख्याल में बोलेंगे वो ज़मीन जिस पे नमक का असर है, तो उसको भी मट्टी नहीं बोलेंगे। अगर सईद को मुतलक अर्ज़ के लिए आप समझते हैं तो हर जगह तयम्मुम करना ठीक है, लेकिन अगर सईद सिर्फ तुराब के लिए वज़ा किया गया है तो फिर रेती पत्थर पर तयम्मुम करना सही नहीं होगा। तो कहते हैं ये कभी इस किस्म का आप शक करते हैं। बे अशक को फ़ी मुरादिल मुतकल्लिम, मुतकल्लिम के मुराद में, मुतकल्लिम के मकसद में आप शक करते हैं। बादल इल्म बिल मानल मौज़ूअ लह, जबकि आपको इल्म है कि इस लफ्ज़ की वो माना कि जिसके लिए वज़ा किया गया वो कौन सी है। मसलन असद का हमें पता है कि शेर के लिए वज़ा किया गया है, लेकिन मुतकल्लिम जब बोलते हैं तो हम शक करते हैं क्या या उसका इरादा वही दरिंदा है या कोई मर्द है हो। अम्मन अव्वल में शक, कहते हैं जब हकीकी माना में हमें शक हो, फ़क़द मर्रल कलाम फ़ी, तो इस हकीकी माना वाली शक के बारे में गुफ्तगू गुज़र चुकी फिल अम्र सादिस, छठे अम्र में। व अलिमत, और आप जान चुके, अन्न हुनाक बेतहकीक, वहाँ पर यानी छठे अम्र में जनाब क्या हैं, अलामातिन, ऐसी अलामतें हैं, युमय्यज़ु बिहा, पहचाना जाता है, बिहा उन अलामात के ज़रिए, अलमानल हकीकी अनिल मजाजी, हकीकी माना को हम मजाजी से कैसे पहचाने। तबादुर होगा तो हकीकी माना है, तबादुर नहीं होगा तो मजाजी माना है। हमल सही है तो हकीकी माना है, हमल सही नहीं है तो मजाजी माना है। वह अम्मन्ना वसानी मिन शक, लेकिन जब आपको दूसरे किस्म का शक हो कि मुतकल्लिम ने क्या इरादा किया है, फ़क़द उक़िद लहू, लहू की ज़मीर बैठा जाएगी नहवे सानी की तरफ, तो इस दूसरे किस्म के शक के लिए पेश किया गया है हाज़ल अम्रो, ये सातवां अम्र। फ़नक़ूल, तो फिर हम कहते हैं, इन शक फ़िल मुराद बेतहकीक, मुतकल्लिम के मुराद में जो शक होता है, अला अक़सामिन, उसकी 5 किस्में हैं यहाँ इस किताब में। खूब, वो 5 किस्में हैं। व फ़ी कुल्ल किस्मिन, और हर शक की किस्म में असलन, एक ख़ास असल और कानून है। यजिब अलल फ़क़ीह, ज़रूरी है फ़क़ीह पर तत्बीक़ुल अमल अलैह, कि वो अपने अमल को फ़िट करे अलैह, उस असल पर। व इलैकल इशारतो, देखिए मुसन्निफ़ कहते हैं हम तफसीली बहस नहीं करेंगे, आपकी तरफ हम इशारा सिर्फ कर देंगे। किसकी तरफ? इला अक़साम शक, कि हमें मुतकल्लिम की मुराद में कैसे कैसे शक होते हैं। वल उसूल, और वो कौन से उसूल हैं, अल्लती युअमलु बिहा, जिन पर अमल किया जाएगा। वो पहले शक, असालतुल हकीकत, या यूँ कहें पहली असल असालतुल हकीकत है। इधर शुक पढ़ें तो बेटा इसका तर्जुमा होगा जब शक किया जाए, और अगर शक पढ़ें तो फिर इसमें एक हुवा की ज़मीर है जो पलटेगी सामे की तरफ। जब सामे शक करे फिर इरादतुल मानल हकीकी अवल मजाजी, कि आया मुतकल्लिम ने हकीकी माना का इरादा किया है या मजाजी माना का इरादा किया है, मिन लफ्ज़, लफ्ज़ से। बेअन लम युअलम वजूदुल करीनत, जबकि इस मुतकल्लिम के बेटा कलाम में कोई करीना मौजूद नहीं है जो करीना दलालत करे अला इरादतुल मानल मजाजी, कि इसने माने मजाजी का इरादा किया है। मा एहतमाल वजूदहा, जबकि एहतमाल है कि शायद कोई करीना मौजूद हो लेकिन देखने में नहीं आ रहा। कमा इज़ा शक, अगर शक पढ़ेंगे तो सामे, या शुक अगर शक किया जाए फ़ी अन्नल मुतकल्लिम,
बेतहकीक मुतकल्लिम साहब ने हल अराद मिनल असद, आया उसने इरादा किया है असद से, फी कौल ही कहाँ पर, जो मुतकल्लिम का ये कौल है, रई तो असदन, मैंने शेर देखा, अल हैवान अल मुफ्तरिसा, बेटा ये मफूल है अरादा का, आया मुतकल्लिम ने असद से इरादा किया हैवान मुफ्तरिस का, अवल जुंदिय शुजा, या दलेर फौजी का उसने इरादा किया है। फ़इंद इज़िन का मतलब क्या है बेटा, जब इस किस्म का शक हो, युआलज शक, तो इस शक का इलाज किया जाता है इंदल उकला, उकला के नज़दीक, बेज़ाबिततिन ख़ासतिन, एक ख़ास कानून और कायदे के तहत। वही वो ज़ाबिता क्या है, अल-अख़्ज़ु बिल-मअनल हकीकी, कि हम उसकी हकीकी माना को ले लेंगे, मा लम यदुल या लम यदुल दलील अलल मानल मजाजी, जब तक कोई माने मजाजी पर करीना मौजूद न हो। वहाज़ा, ये जो हमने इलाज जो आपको बताया, युअब्बर अन्हु बिअसालतिल हकीकत, इस इलाज को, इस कानून को नाम दिया जाता है किसका बेटा, असालतुल हकीकत का। 2 असालतुल उमूम, असल ये है कि बेटा असालतुल उमूम का मतलब क्या है, असल ये है कि हम आम मुराद लें। इज़ा वरद आमन फिल कलाम, जब कलाम में कोई आम लफ्ज़ आए, कमा इज़ा काल अल मौला, जैसे मौला आपको कहता है अकरमिल उलमा, मौलवी साहबान की इज़्ज़त करें, बेटा उलमा जमा है और इस पर अलिफ लाम दाखिल हुआ, ये उमूम का फ़ायदा देता है, यानी हर मौलवी की इज़्ज़त करो। व शुक, और शक किया जाता है, फ़ी वुरूद तख़सीस अलैह, क्या ऐसे उलमा को कोई तख़सीस लगी है कि अकरमिल उलमा, तुम उलमा की इज़्ज़त करो, इल्लल फुसाक, लेकिन जो फासिक है उनकी इज़्ज़त नहीं करो। कलाम में फासिक का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन हमें शक होता है। वह इखराज बाद अफराद ही, और ख़ारिज किया गया है इस आम के बाद अफराद को, किससे, इज़्ज़त से, जैसे फासिक। फल असल, तो यहाँ कानून ये हुवल अख़्ज़ु बिल उमूम, कि भाई आप हर मौलवी की इज़्ज़त करेंगे, फासिक गैर फासिक सब की इज़्ज़त करनी है। और वह तर्क व एहतमाल तख़सीस, और असल ये है कि यहाँ पर आप तख़सीस यानी कैद लगाने को तर्क करेंगे। वहाज़ा, ये जो कानून है, मा युअब्बर अन्हो, ये ऐसा है जिसकी ताबीर की जाती है बेअसालतुल उमूम, इसको असालतुल उमूम कहा जाता है। 3 असालतुल इतलाक़, इज़ा वरद मुतलक़ुन, जब कोई मुतलक बेटा कलाम में आए, मुतलक यानी जिसको कोई कैद लगी हुई न हो। वह शुक, और शक किया जाता है, फ़ी कौने ही, कि ये जो मुतलक है तमामल मौजू, आया इस हुक्म का ये पूरा मौजू है, यानी हुक्म इसके तमाम अफराद को शामिल है। और बाज़ हो, या भाई ये जो मुतलक है ये पूरा मौजू नहीं है बल्कि मौजू का कुछ हिस्सा है। कमा काल सुबहान हो, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह ने बेटा बै को हलाल किया है। बै यानी बेचना, तवज्जो मेरी तरफ हो। अब ये बै मुतलक है, दूध का बेचना, चावल का बेचना, गंदम का बेचना, गोश्त का बेचना, ये सब को शामिल है कि शामिल नहीं। अब हम शक करते हैं कि शायद बै से कोई ख़ास बै मुराद है। वह तो मिल, और एहतमाल दिया जाता है कि अन्नल मुराद बेतहकीक, इस बै से मुराद हुवल बै ओ, ये वो बै है बेसीगते, जिसमें बेटा ईजाब और कबूल पढ़ा जाए। जैसे निकाह में आप कहते हैं अनकह तो कबिल तो आप भी कहते हैं अहल्लल्लाहुल बै, शायद वो बै मुराद है कि जिसमें बे तो और इश्तरे तो हो। बे तो यानी मैंने बेचा, इश्तरे तो मैंने ख़रीदा। दून मुतलक ही हर बै मुराद नहीं है। फल मरजओ इंद इज़्न, जब इस किस्म का आपको शक हो तो रुजू किया जाएगा किसकी तरफ, वल अख़्ज़ु बिल इतलाक़, आप इतलाक़ मुराद लेंगे, भाई हर बै को शामिल है। व इल्ग़ा व एहतमाल तक़यीद, ये जो सीगे वाला कैद है आप इसको मुलगा कर दें, कहें कि ये इस किस्म का कोई एहतमाल ठीक नहीं है। वह हाज़ा, ये जो अब तीसरे नंबर पे आपने असल पढ़ा है, युअब्बर अन्हु बिअसालतिल इतलाक़, इसको क्या कहा जाता है बेटा, असालतुल इतलाक़ कहा जाता है। हो चौथा कानून असालत अदम तकदीर, असल ये है कि कोई भी चीज़ बेटा तकदीर में छुपी हुई नहीं है। इज़ा वरद कलामुन, जब मुतकल्लिम का कोई कलाम आपके सामने आए, वह तो मिलफ़ी है
तकदीर लफ्ज़ खास, और एहतमाल है कि इस कलाम में कोई ख़ास लफ्ज़ तकदीर में है। फलमरजअ इंदल उक़ला, तो वो कानून कि जिसकी तरफ रुजू किया जाता है उक़ला के नज़दीक, वो अदम तकदीर, वो ये है कि यहाँ कोई चीज़ तकदीर में नहीं है। इल्ला अन तदुल्ल अलैहि करीनतुन, मगर ये कि दलालत करे अलैहि, उस तकदीर पर कोई करीना, तो फिर हम करीने के पाबंद हो गए। कमा फी कौलिही सुब्हानह, जैसे अल्लाह ताला के कौल में है क्या बेटा, करीना, कि यहाँ पर तकदीर है। वस्अलिल करियत, तुम पूछो उस गांव से, अल्लती कुन्ना फीहा, जिसमें हम थे। बेटा अब देखें कौन सा यहाँ करीना है, करीने लफ्ज़िया नहीं है, अकली करीना है कि भाई गांव से क्या पूछेंगे, गांव तो हमें कोई जवाब नहीं दे सकेगा। खूब, वह तकदीर अहलुल करियत, और यहाँ पर तकदीर में अहल का लफ्ज़ तकदीर में है। वहाज़ा, ये जो चौथे किस्म का आपने कानून पढ़ा, यो अब्बर अन हो, इसकी ताबीर की जाती है बे असालत अदम तकदीर, असल ये है कि यहाँ पर कोई लफ्ज़ तकदीर में नहीं है। नंबर 5, असालत ज़ुहूर। बेटा इज़ा कान लफ्ज़ो ज़ाहिरन फ़ी मानन ख़ास, जब लफ्ज़ ज़ुहूर रखता है ख़ास माना में, जैसे ऐदी हाथ में ज़ुहूर रखता था, दून अन यकुन नस्सन फ़ी, लेकिन ये ऐदी नस नहीं है। बेटा तवज्जो, नस का क्या मतलब है और ज़ुहूर का क्या मतलब है? ज़ुहूर का मतलब है कि ये लफ्ज़ इस हाथ में ज़ुहूर रखता है, लेकिन एहतमाल है कि शायद कोई और चीज़ भी मुराद हो। लेकिन नस कहते हैं ये लफ्ज़ मसलन इस माना पे दलालत करता है और इसमें कोई एहतमाल खिलाफ नहीं। पर ज़ुहूर में एहतमाल खिलाफ होता है, नस में कोई एहतमाल खिलाफ नहीं होता है। बहस भाई, वो नस ऐसे होती है कि ला युहतमल माहुल खिलाफ, उस नस के साथ हमें कोई एहतमाल खिलाफ नहीं होता। फल असल साबित इंदल उक़ला, बस वो कानून जो साबित है अक्लमंदों के नज़दीक, हुवल अख़्ज़ु बिज़ुहूरिल कलाम, कहते हैं कि आप कलाम की ज़ाहिरी माना को ले लें, व इल्गाउ एहतमाल खिलाफ, और उसमें अगर कोई खिलाफ का एहतमाल है उसको छोड़ दें। वहाज़ा मा युअब्बर अन्हु बिअसालत ज़ुहूर, बेटा इसको कहा जाता है कि असल ये है कि ये कलाम अपनी माना में ज़ुहूर रखता है, ज़ुहूर के ख़िलाफ़ हम नहीं जाएंगे। सुम्मा इन्नल उसूल साबिका, भाई जो पिछले 4 उसूल आप पढ़ के आए वो क्या हैं? वो जनाब मसादीको ले असालत ज़ुहूर, मसादीकुन नहीं पढ़ेंगे बेटा, हालांकि इन्न की ख़बर है, इन्न की ख़बर मरफू होती है, लेकिन मसादीक गैर मुनसरिफ है तो उस पर तनवीन नहीं आएगी, मसादीकुन नहीं कहेंगे, मसादीको। कहते वो 4 के 4 उसूल वो मिस्दाक हैं असालत ज़ुहूर के। वहाज़िल उसूल, फरमाते ये जो 5 उसूल हमने आपको बताए, मिम्मा, ये उन उसूल में से है, ये अतमद अलैहिल उक़ला, जिस पर भरोसा करते हैं अक्लमंद। किस में? फ़ी मुहावरात हैं, मुहावरात का मतलब बेटा आम बोल चाल, ये जो हम आपस में आम बोल चाल करते हैं। वल्लम यर्द अन शारे, और शारे ने इन उसूल से मना भी नहीं किया कि इन पर आप अमल नहीं करें। फ़या हुज्जतुन, तो फिर नतीजे में ये उसूल क्या हो जाएंगे बेटा? हुज्जत हो जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि असालतुल उमूम पर दलील, आप कहें कि शारे की रिदायत, शारे के सामने भी लोग आम लफ्ज़ बोलते थे, शक की सूरत में भी उमूम मुराद लेते थे, शारे यानी नबी अकरम, फिर नबी अकरम ने मना नहीं किया तो मतलब ये कि वो क्या है? राज़ी हैं। वैसे भी बेटा हमारे नबी या हमारे आइमा की सुन्नत किसे कहते हैं? या वो चीज़ जो वो फरमाएं, या जो वो अमल करें, या हम एक अमल करते हैं उनके सामने वो हमें मना नहीं करते, इसको कहते हैं तकरीरुल मासूम, तो ये भी सुन्नत में आ जाता है। बस ये उसूल आइमा मासूमीन के ज़माने में, रसूल के ज़माने में जारी और सारी थे, उन्होंने मना नहीं किया, नतीजे में ये हमारे लिए क्या है? हुज्जत हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मुराद मुतकल्लिम में शक हो तो आपको ये उसूल जारी करने हैं, अगर हकीकी और मजाजी माना में शक हो तो जो पिछले दर्स में अमर सादिस में हम पढ़े उन कवानीन को और अलामतों को जारी करना है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।